Hi students and welcome in our further video of Social Science, Social and Political Life Part 3rd, textbook for class 8th. Students, today we are going to start our 4th chapter, that is Understanding Laws. So students, you have to open the page number 42 and listen carefully. Understanding Laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. यानी हम फैमिलियर होंगे बहुत सारे चीज़ों से कि जो स्पेसिफाई करती है एज, मैरिज का एज कौन सा होना चाहिए, वोट का एज, वोटिंग करने का एज कौन सा, और लॉ जो भी डीलिंग है बाइंग और सेलिंग यानी खरीदना बेचना अपनी प्रॉपर्टी को, उसके लिए भी कौन से लॉज है, ये सब लॉज पार्लियामेंट ने जो है इंचार्ज लिए हैं. डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये लॉज सबके लिए रहते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बिंग, कुछ न्यू लॉज कैसे आते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्सल, क्या कुछ लॉज अनपॉपुलर रहते और कंट्रोवर्सल यानी विवादास्पद रहते? व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंस, क्या हम एक इंडियन, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से इस ऐसी हालत में क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में. डू लॉज अप्लाई टू ऑल, लॉज सबके लिए रहते क्या? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन टू गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन अ 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? ठीक है, उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में. The above is the clear case of the violation of law. As you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. यानी सबके लिए समान न्याय होना चाहिए और जो भी सजा है वो होनी ही चाहिए इस प्रकार. They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. इस तरह के लॉ के रूल्स बनाए कॉन्स्टिट्यूशन ने. The most important of these was that all the peoples independent India are equal before the law. यानी लॉ के सामने इंडिया के सभी नागरिक सभी एक जैसे हैं, एक समान हैं. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste और gender. और लॉ कभी भी मतभेद भेदभाव नहीं करेगा लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ उनका धर्म हो, उनकी जात हो या उनका लिंग हो, यानी वो पुरुष हो या स्त्री हो. इसके बारे में What the rule of laws means is that all laws apply equal to all citizens of the country and no one can be above the law. यानी सब लोग लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी ऊपर और कोई भी लॉ के हिसाब से कोई भी यानी ऊंचा नीच नहीं है. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, सब समान है. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established. उनको punishment होना ही है. But was it always like this? लेकिन ऐसा होता ही है क्या? In ancient India there were innumerable and often overlapping local laws थे. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws. तो बहुत सारे communities enjoy करते थे different degrees में, यानी ancient India की बात है ये. Among their own. In some cases the punishment that two persons receive from the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harassed पेनलिस. यानी देखो, अगर एक जैसी पनिशमेंट है लेकिन उनकी कास्ट, उनका बैकग्राउंड, उसके हिसाब से उनमें भी डिफरेंस होता है. यानी उनकी जो भी पनिशमेंट है, उनका अगर क्राइम एक है लेकिन उनके बैकग्राउंड, उनकी कास्ट अगर अलग अलग है तो उनको पनिशमेंट भी अलग अलग मिलती थी. दिस स्लोली बिगैन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगैन टू फर्दर रिवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. लेकिन ये सिस्टम स्लोली चेंज होने लगी थी और चेंज हुई. ठीक है.
It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. ऐसा बिलीव किया जाता है ब्रिटिश जो भी कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने लॉ यहाँ पे इंडिया में लाया. हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, two of which includes first that colonial laws was arbitrary, the second that the Indian nationalists placed a prominent role in the development of legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Sedition Act 1870. The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. यानी ऐसे लॉस थे, ब्रिटिश लोगों के लॉस थे 2-4 प्रकार के. तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा भी पर्सन अगर प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुल बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल से पहले उसको अरेस्ट कर देगी. Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by British. They also began fighting to greater equality and wanted to change the idea of law from the sets of rules that they were forced to obey टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ एंड जस्टिस. यानी कुछ लोग ऐसे थे कि जो फाइटिंग कर रहे थे ग्रेटर इक्वेलिटी के लिए, और उनको वो चाहते थे कि जो भी आइडिया है लॉ की, रूलर्स की, उन पे जो फोर्स होता है ओबे करने के लिए, जस्टिस के लिए, वो बात. बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट्स इन कॉलोनियल कोर्ट्स. बाद में रिस्पेक्ट भी मानने लगे, उनको रिस्पेक्ट मांगने लगे. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decision. और बाद में जो भी इंडियन जज थे वो भी अच्छे सा रोल प्ले कर रहे थे डिसीजन लेने में. Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the ruler of law ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. इस तरह से बहुत सारे तरीके से जो इंडियन लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वहाँ पे. विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगैन मेकिंग लॉज of the country. Every year our representative pass several new laws as well as amend existing ones. Every year जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेवरल लॉज को पास करते हैं. इन यूर क्लास 6 बुक, आपके 6 स्टैंडर्ड की बुक में, यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ क्या था, सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. फैमिली प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर मिलेगा सन, बहन और उसके माँ को. इस तरह से बोला गया है. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन enacted to control population and provide employment. पॉपुलेशन कम करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिलाने के लिए भी लॉज थे कुछ. हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी. तो लोग कैसे सोच में आ गए कि न्यू लॉ नेसेसरी है, न्यू लॉ चाहिए. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो. उसके बाद है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. So about this we will see in our next video.